हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इंट्रोडक्शन, पॉइंट, लाइन, कॉलिनियर पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, कर्व्स, पॉलीगॉन, एंगल। नाउ इंट्रोडक्शन. Geometry is the study of position, shape, size and other properties of different figures. The geometrical terms such as point, line, plane, etc. contain the basic ideas for the development of geometry. In this chapter, we will learn about them. Now, point. A point is a mark of location. It is a fine dot marked by the tip of the sharp pencil on a sheet of paper. Dot. These are. Right? It has neither length nor width nor thickness. इसकी neither length nor width nor thickness. Right? It is denoted by a single capital letter of the English alphabet such as A, P, X, etc. as shown alongside and is read as point A, point P, point X, etc. Stars in the sky, pointed end of the needle, tip of the compasses, etc. are the examples of point. ये सारे हमारे क्या है? Point X, point A and point B. Now next is line. A line is made up of infinite number of points joined together on a straight path extended indefinitely in both directions. यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स उनको ज्वाइन किया गया है और जो हमारा लाइन है वो दोनों डायरेक्शंस में क्या है? इनडेफिनेटली क्या जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, आगे जा रहा है. ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, नो हाइट, नो विड्थ बट हैज एन इनडेफिनेट लेंथ. इसका ना कोई एंड पॉइंट है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है, नो हाइट, नो विड्थ, लेकिन क्या है? हैज एन इनडेफिनेट लेंथ. दोनों तरफ ये इनडेफिनेटली क्या होती जा रही है? आगे बढ़ती जा रही है. द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ लाइन ए बी that passes through two points A and B. It is denoted by AB. ये हमारी क्या है? दो पॉइंट है A and B और दोनों को मिला के, और ये जो अप एरोज देख रहे हो दैट मीन्स ये दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? AB और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? इस तरह से मार्क AB और दोनों तरफ से ऐसे. दैट मीन्स ए बी हमारी क्या है? एक लाइन है जो दोनों तरफ इंडेफिनेटली क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. मैथ्स फैक्ट. एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट बट ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लाइन्स. फर्स्ट इज पैरेलल लाइन्स. Two straight lines are said to be parallel to each other if they lie in the same plane and do not intersect when produced on either side. एक सिंगल प्लेन पे, सेम प्लेन पे दो लाइंस, और अगर उनको हम आगे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी. व्हेन प्रोड्यूस ऑन ईदर साइड. ईदर साइड मीन्स दोनों डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू लाइन्स ए बी एंड सी डी विच आर पैरेलल टू ईच अदर. द लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी is symbolically represented by writing AB parallel to CD. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से कि AB जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? CD के. राइट? Which is read as line AB is parallel to line CD. Tracks on a railway line, lines in English copy, opposite side of windows, etc. are the examples of parallel lines. Maths fact. Parallel lines do not have a common end point.
Number 2, parallel lines never meet each other. Now next is intersecting lines. Two straight lines are called intersecting lines if they intersect each other at a common point. The common point is called point of intersection. यहाँ पे जैसे ए बी और सी डी है, इन्होंने ओ पे क्या किया है, एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो जो ए ओ पॉइंट है वो हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. द एडजॉइनिंग फिगर्स शो टू लाइन्स ए बी एंड सी डी which are intersect at a point O. Thus, O is the point of intersection. Letter X of English alphabet, cross on parade's flag, crossing of the roads, etc. are the examples of intersecting lines. Maths fact. The distance between two parallel lines always remains the same, whereas the distance between two intersecting lines keeps on changing. Now next topic is concurrent lines. If three or more straight lines pass through the common point, the lines are called concurrent lines. Like this, right? The common point is called point of concurrence. This one. सारी लाइन्स इसी से पास हो रही हैं. The adjoining figure shows concurrent lines AB, CD, EF and GH as all the lines are passing through the common point P. Thus, the P is the point of concurrence. The wheel of cart, Ashok Chakra, wheel of a cycle, etc. are the examples of concurrent lines. Now next is collinear points. If three or more points lie on the same straight line, then the points are called collinear points. This one. ये सारे points एक ही straight line पे हैं, तो these are called collinear points. The given figure shows collinear points A, B, C and D as these points lie on the same line. The adjoining figure shows three non-collinear points P, Q and R as these points do not lie on the same straight line. P, Q and R तीनों क्या है, non-collinear. क्या है ये, non-collinear. Now next is line segment. A line segment is a part of a straight line bounded by two endpoints. The adjoining figure shows a line segment PQ. एक लाइन में से जब हम उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या कर देते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं कि ये इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, लाइन सेगमेंट. जैसे ये हमारी यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, दीज पॉइंट्स हैं, ये P इसका स्टार्टिंग पॉइंट और Q इसका एंडिंग पॉइंट. तो PQ shows a line segment PQ which is a part of line L. जो हमारी L लाइन का क्या है, एक पार्ट है. The two end points P and Q are used to name the line segment. The segment is called line segment PQ which is denoted by PQ और ऊपर क्या लगा देंगे, एक straight line. That means कि P उसका starting point है और Q उसका ending point है. An edge of a box, a tube light, an edge of a postcard, etc. are the examples of line segments. Now next, maths fact. Only one line segment can be drawn with two given points. Now next topic is ray. A ray is a line segment extends indefinitely in one direction. The adjoining figure shows a ray AB that extended indefinitely in the direction from A to B. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट है A और यहाँ पे क्या है, एरो. दैट मीन्स ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है या ओरिजिन पॉइंट है जहां से हमारी रे स्टार्ट हुई है, और B आगे जो एरो का साइन है, दैट मीन्स ये इनडेफिनेटली जहां तक इसको रास्ता मिलेगा ये आगे बढ़ती जाएगी.
राइट. इट इज डिनोटेड बाय ए बी. कैसे डिनोट हो रही है? ए बी, रे ए बी, एक तरफ एरो लगेगा. दैट मीन्स यहां इसका ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडलेसली वो क्या जा रही है? डायरेक्शन बी की तरफ जा रही है. बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस, rays of light from torch, sun rays, etc. are the examples of rays. Now, maths fact. A ray has one end point which is also known as its initial point. A ray has no definite length. Any number of rays can be drawn with the same initial points. Now, next topic is plane. A solid has a surface which may be flat or curved. For example, the surface of a wall is flat. Flat होता है, plane होता है बिल्कुल, and the surface of a ball is curved. Ball क्या होती है? गोल होती है ना, तो curved surface है उसका. In mathematics, a smooth flat surface which extends endlessly in all the direction is called a plane. A plane has no boundary. Page of a book, surface of a wall, top of a table, etc. are the examples of plane. Maths fact. When a straight line is drawn through any 2 points on a plane, the line entirely lies in the plane. Now, try these. Fill in the blanks. First, a dash is a mark of location. किसी भी लोकेशन के जो मार्क लगाते हैं वो क्या होता है हमारा? पॉइंट. क्या होता है हमारा? पॉइंट. राइट. नंबर 2, डैश लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. कौन सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है? पैरेलल लाइंस. तो यहां पे आप क्या फिल करेंगे? पैरेलल लाइंस. इसी तरह से बाकी के फिलअप्स आप खुद रीड करो और देखो कौन कौन सी लाइंस के बारे में उसमें बताया गया है. Now, example. From the figures given below, name. A part. All pairs of parallel lines. हमें एक फिगर गिवन है ये वाली, और इसमें से हमें क्या बताना है? सारी पैरेलल लाइंस बतानी है. पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? दो जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. तो कौन कौन सी है आपकी? L, M and N. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. A part. The pair of parallel lines are L and M and L and N. L M के parallel है, L is parallel to M is parallel to N और N is parallel to L. Right? तो ये सारे क्या हैं? Parallel lines. Now, B part. All pairs of intersecting lines. Solution देखते हैं इसका हम. The pairs of intersecting lines are LP, MP, NP, LQ, MQ, NQ and PQ. ये सारी देखो, L हमारी LP, MP, NP और Q हमारी LQ, MQ और NQ. और ये सारे क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ये वाले. और P और Q कहाँ हो रहे हैं? इंटरसेक्ट A पे. तो ये सारे हमारे क्या हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नाउ C पार्ट. Lines whose point of intersection is P. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है? P. P is the point of intersection of line L and P. L and P. L and P का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? P. Right? Now D part. Lines whose point of intersection is C. सी पॉइंट पे कहां कट हो रही है? ये रही. कौन सा है? M and Q. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. C is the point of intersection of line M and Q. Now E part. Lines whose point of intersection is R. R किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? N और P का. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. R is the point of intersection of line N and P. किसका है? N and P का इंटरसेक्शन पॉइंट R. Now F part. Collinear points.
सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। फॉलोइंग आर टू सेट्स ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन सेगमेंट पे होते हैं। तो कौन कौन से हैं? ए, पी, क्यू, आर। तो हमारे ए, पी, क्यू एंड आर, और दूसरे क्या है? ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी, ये सारे हमारे क्या हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ ए पार्ट, लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। ए पार्ट का लाइन्स L, Q एंड R इंटरसेक्ट एट ए। देखो कहाँ है? ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है A, तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन है? L है, R है और Q है, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? A। तो ये हमारी लाइन कौन कौन सी है? L, Q एंड R। नाउ B पार्ट, लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट B। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। लाइन्स M, P एंड R इंटरसेक्ट एट B। देखो B पॉइंट कहाँ है? ये रहा हमारा B पॉइंट, राइट। इसमें कौन कौन सी है? M, P और R। R भी आ रही है ना ऊपर से नीचे तक, तो M, P एंड R ये सारी हमारी क्या है? लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट हो रही है हमारी एट पॉइंट B। नाउ C पार्ट, कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। Lines L, Q and R are concurrent with A as the point of concurrence. Concurrent कौन सी होती है? जहां से सारी लाइंस, तीन से ज्यादा लाइन क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो A से कौन कौन सी कर रही है? L, Q एंड R। ये सारी हमारी क्या है? लाइंस है कॉन्करेंट, जो A पॉइंट पे क्या है? कॉन्करेंट हो रही है। ऑल्सो लाइंस M, P एंड R, M, P एंड R ये कहाँ हो रही है? हमारी B पे, राइट। आर कॉन्करेंट विद B एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। मार्क 4 points A, B, C and D such that no 3 of them are collinear. Draw all the lines which join them in pairs. A part, how many such lines can be drawn? B part, write the names of these lines. C part, name the lines which intersect at C. Solution करते हैं इसका हम। 4 points A, B, C and D are shown in the figure such that no 3 of them are collinear. They are joined in pairs as shown. तो हमने क्या किया? यहाँ पे नाम लिख दिया A, B, C and D. कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर मीन्स एक लाइन पे नहीं है। ए पार्ट, इसका ए पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। 6 लाइन्स कैन बी ड्रॉन इन ऑल। टोटल कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है? अब हमने क्या किया? ए से बी को मिलाया, यहाँ पे बी से सी को, सी से डी को और डी से ए को, फिर बी से डी को और ए से सी को। तो टोटल कितनी लाइन्स ड्रॉ की हमने? 6 लाइन्स। नाउ बी पार्ट, नेम द लाइन्स। इन सारी लाइन्स का हमें क्या लिखना है? नेम। तो नेम क्या है हमारा? जैसे हमने ए से बी को मिलाया तो ए बी, बी से सी को मिलाया बी सी, सी से डी को मिलाया सी डी, डी से ए को मिलाया डी ए, और ए को सी से मिलाया ए सी, बी को डी से मिलाया तो बी डी। ये सारी लाइन्स का क्या है? नेम। नाउ नेक्स्ट क्या था? नेम द लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट सी। कौन कौन सी लाइन सी पे इंटरसेक्ट हो रही है? देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट सी आर बी सी। बी और सी हमारे यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, डी और सी हमारे यहाँ पे, डी सी हमारी इंटरसेक्ट हो रही है, और ए और सी। तो ये हमारी क्या है? वो लाइन्स है जो हमारी पॉइंट सी पे क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स। Take a pencil and a paper. Put the sharp tip of the pencil on the paper and without lifting it, move it aimlessly from one point to the other. The figure so obtained is called curve. क्या बोला इसने? हमने एक पॉइंट ऐसे रखा
और इसको बिना उठाए इस तरह से हमने कैसे भी घुमा दिया, ठीक है, किसी भी शेप में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, या इसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये जो बने हैं ये हमारे क्या हैं, कर्व्स। सम एग्जांपल्स ऑफ कर्व्स आर एज फॉलोज, ये सारे हमारे क्या हैं, कर्व्स के एग्जाम्पल जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ कर्व्स। कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज ओपन कर्व, second is closed curve. Now first is open curve. A curve which has different initial and final points is called an open curve. जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे, यहाँ से इस कर्व को स्टार्ट किया और यहाँ एंड किया, तो दो अलग अलग जगह से हमने इसका क्या किया, स्टार्टिंग और एंड किया ना, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ये क्या है, क्लोज नहीं है ना, खुला हुआ है, दैट इज ओपन कर्व। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन कर्व्स आर एज फॉलोज, ये सारे एग्जाम्पल्स देखो, ये स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग एंड, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ओपन कर्व के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सेकंड इज क्लोज्ड कर्व। अ कर्व इन विच इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड विद ईच अदर इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। दैट मीन्स जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज्ड कर्व्स आर एज फॉलोज, कौन कौन से हैं देखो, ये आपका शेप, ये शेप क्या है, ये हमारे क्लोज्ड कर्व्स। नोट दैट ऑर्डिनरी कर्व्स मीन्स नॉट स्ट्रेट, हाउएवर in mathematics a curve can be straight like the one. Now the closed curves that do not cross themselves are called simple closed curves and the curves that cross themselves are called complex closed curves. Now example देखते हैं इसका। Identify the following figures as open, सिंपल क्लोज्ड एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व्स। हमारे पास 4 फिगर्स हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इनका हम, राइट। फर्स्ट वाला क्या है, ओपन, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है और घूम घूम के ऐसे आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्या है, ओपन कर्व। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, ओपन कर्व। सेकंड वाला क्या है, बंद है, ठीक है, हमें नहीं पता कहां स्टार्ट हुआ कहां एंड पॉइंट हुआ, लेकिन क्या है, क्लोज्ड है, तो ये हमारा सिंपल, और एक दूसरे को कहीं पे ये क्रॉस भी नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, क्लोज्ड कर्व है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, देखो यहां से यहां क्रॉस किया, यहां से यहां क्रॉस किया, राइट, तो ये हमारा है कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। क्या है ये हमारा, कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट वाला क्या है, कैसा है, क्लोज्ड है लेकिन एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। नाउ नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। A closed curve separates a plane into parts. First is interior of the curve. The region of the plane that lies inside the curve is called the interior of the curve. जो कर्व के अंदर वाला पार्ट है, जो कर्व के अंदर वाला पार्ट है वो इंटीरियर। नाउ सेकेंड इज बाउंड्री ऑफ द कर्व। The line that separates the interior and exterior region of the curve is called the boundary of the curve. जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कर्व ड्रॉ करेंगे, तो उसके अंदर वाला पार्ट इंटीरियर, बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर, और उस बाउंड्री से, उस लाइन से हमारे दोनों रीजन क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द कर्व। नाउ थर्ड इज exterior of the curve. The region of the plane that lies outside the curve is called the exterior of the curve. In the figure, point A is in the interior, point C is in the exterior and point B is on the boundary of the curve. देखो ये हमें एक closed curve दे रखा है, A हमारा क्या है, closed curve के अंदर है, तो ये हमारा इंटीरियर रीजन है, अंदर का रीजन। C हमारा क्या है, कर्व के बाहर का रीजन है,
कर्व से बाहर है ना, तो ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर रीजन। और बी हमारा किस पे है, कर्व की लाइन पे है, कर्व की क्या है, इस शेप पे है, लाइन पे है, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री, राइट। नाउ मैथ्स फैक्ट, द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर with its boundary is called the region. Now next is polygon. The term polygon derived from the Greek words poly, many, and gons means corner or angles. A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. A simple closed curve made up of line segments. एक simple closed curve है और जो किससे बना है, लाइन सेगमेंट से, इज कॉल्ड द पॉलीगॉन। सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगॉन्स फाउंड इन नेचर आर एज फॉलोज। ये देखो इस तरह से डिजाइन बने हुए हैं ये, ठीक है, ये हमारे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। मैथ्स फैक्ट, मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पॉलीगॉन। अगर हमें पॉलीगॉन बनाना है तो कम से कम 3 लाइंस चाहिए, राइट। द फॉलोइंग टेबल शोज पॉलीगॉन्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हमें कुछ पॉलीगॉन्स दे रखे हैं, देखते हैं। पॉलीगॉन्स मीन्स फिगर्स, नंबर ऑफ साइड्स, नेम्स ऑफ पॉलीगॉन्स। फर्स्ट हमारा क्या है, ट्राइंगल। फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल। कितनी साइड्स हैं, 3, और इसको क्या बोला गया है, ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स जो 4 साइड से बना है, कितनी साइड्स हैं, 4, और इसको क्या बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट में कितनी साइड्स हैं, 5। 5 साइड्स वाले को क्या बोला जाता है, पेंटागन। क्या बोला जाता है, पेंटागन। नाउ नेक्स्ट में कितनी है, 6 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 6, इसको क्या बोला जाता है, हेक्सागन। क्या बोला जाता है, हेक्सागन। नेक्स्ट में कितनी है, 7 साइड्स हैं, इसको क्या बोला जाता है, हेप्टागन। क्या बोला जाता है, हेप्टागन। नेक्स्ट में कितनी साइड्स हैं, 8। 8 साइड्स वालों को क्या बोला जाता है, ऑक्टागन। नेक्स्ट में कितनी साइड्स हैं, 9। 9 साइड्स वाले को बोला जाता है नोनागन। क्या बोला जाता है, नोनागन। नेक्स्ट में कितनी है, 10 साइड्स। कितनी है, 10 साइड्स, उसको क्या बोला जाता है, डेकागन। क्या बोलते हैं हम, डेकागन। नाउ मैथ्स फैक्ट, if all the sides of a polygon are of same length, then it is a regular polygon. If the sides of a polygon are of different lengths, then it is an irregular polygon. तो similar sides वाले को regular और different sides वाले को क्या बोला जाता है, irregular polygon. Now next topic is parts of a polygon. First is sides. The line segments forming a polygon are called its sides or edges. लाइन सेगमेंट जिनसे वो पॉलीगॉन बना है उनको क्या बोला जाता है, साइड्स और एजेस। जैसे ये हमारा ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, ये हमारी क्या है, इसकी साइड्स। इन द फिगर ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पॉलीगॉन इन विच ए बी, बी सी, सी डी, डी ई and EA are its sides. Now adjacent sides. The two sides of a polygon having one common endpoint are called adjacent sides. जैसे AB और AE में common point क्या है, A. AB और CB में क्या है, B. तो ये हमारी क्या है, ये इसकी एडजेसेंट भी है और ये वाली इसकी एडजेसेंट, ये वाली इसकी भी एडजेसेंट है और इसकी भी। तो एडजेसेंट जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, राइट। इन द फिगर ए बी एंड बी सी, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट डी ई, line segment DE, EA and EA and AB are the pairs of adjacent sides. ये हमारी क्या है, pairs of adjacent sides, right? Now next is vertices. The adjacent sides of a polygon meet at a common point called vertex.
दैट इज इट इज ए पॉइंट वेयर ए पेयर ऑफ साइड्स मीट। तो ये सारे क्या है, ये वर्टेक्स है, ये ए, ई, डी, सी और बी, क्योंकि हर दो लाइन सेगमेंट क्या हो रही है, वहां पे ज्वाइन हो रही है। इन द फिगर द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई आर ए, बी, सी, डी एंड ई, ये सारे हमारे क्या हैं, वर्टिसेस। नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंट वर्टिसेस। The endpoints of same side of a polygon are called adjacent vertices. In the figure, the endpoints of CD are C and D. So, CD is pair of adjacent vertices. The other pairs of adjacent vertices are A and B, B and C, D and E and E and A. ये हमारे क्या हैं, adjacent vertices. Now next is diagonals. The line segment joining the two non-adjacent vertices is called the diagonal of the polygon. कैसे, देखो A हमारा C, A के B तो क्या है, adjacent है ना, लेकिन C adjacent नहीं है, तो A से D, B से E, C से E और D से B और B से E, ये सारे क्या हमारे डायगोनल्स, राइट। तो ये हमारे क्या हैं, जो एडजेसेंट वर्टिसेस से अलग है। इन द फिगर AD, AC, CE, BE and BD are the diagonals of the polygon ABCDE. Now try these. Name the regular polygons having the following number of sides. फर्स्ट में कितनी है, 7 साइड। 7 साइड्स वाले को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हेप्टागन, राइट। 9 साइड वाले को नैनागन। इसी तरह से 4 साइड वाले को क्या बोलेंगे, 10 साइड्स वाले को क्या बोलेंगे, आप खुद इनको लिखेंगे, इनका नाम चारों का, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज नेम द साइड्स, वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स, adjacent vertices and diagonals of the given polygon. Also state whether it is a regular or irregular polygon. Solution देखते हैं इसका हम। साइड्स देखो कौन कौन सी हैं, साइड्स हैं हमारी AB, BC, CD and DA, ये हमारी क्या है, साइड्स। The sides of the polygon are AB, BC, CD and DA. The adjacent sides of the polygon are, adjacent कौन सी हैं, AB BC के adjacent है और AB हमारा AD के adjacent है। इसी तरह से BC हमारा AB के भी adjacent है और CD के भी adjacent है। तो इस तरह से हमारे the adjacent sides of the polygon are AB and BC, AB and BC, दूसरी क्या है, BC and CD, BC and CD, CD and DA, DA and AB, ये सारी हमारी क्या है, एडजेसेंट साइड्स। नाउ द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन आर, पॉलीगॉन के वर्टिसेस कौन से होते हैं, जहां पे दो लाइन मिलती हैं, ये A, B, C and D, यही है A, B, C and D, these are the vertices of the polygon. The adjacent vertices of the polygon are, adjacent कौन से होते हैं, जिनके कॉमन होते हैं, A, B हमारे एडजेसेंट है, B और C एडजेसेंट है, C और D एडजेसेंट है, D और A एडजेसेंट है। द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन आर, डायगोनल्स कौन कौन से हैं, जो एडजेसेंट से अलग होते हैं, तो A और C, B और D, तो हमारे क्या है, AC एंड BD, these are the diagonals of the polygon. The polygon is irregular as the length of all the sides are not equal. क्या है ये, irregular polygon है, क्यों, देखो ये बड़ा है, ये अलग इसका लेंथ है, इसकी अलग है, इसकी अलग, सेम नहीं है ना सबकी लेंथ, तो ये है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एंगल क्या है, दो रे और उनका सेम इनिशियल पॉइंट, जैसे यहाँ पे O है, तो ये क्या बना हमारा एंगल, राइट। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रेज forming the angle are called its arms
और साइड्स। ये हमारा क्या है, जिन दो रेस जहां पे मिलती है वो हमारा क्या बनाया जाता है, इनिशियल पॉइंट, और उसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। और जिन दो रेस से हमारा एंगल बनता है, रे OA एंड रे OB, ये क्या होती है हमारे एंगल की आर्म्स और साइड्स। इन द एडजॉइनिंग फिगर, रेस OA एंड OB with a common initial point O form an angle. O is called the vertex of the angle, whereas ray OA and ray OB are considered as arms or sides of that angle. We name this angle as angle O. ये हमारा एंगल का साइन है, ये है एंगल O। और कैसे लिख सकते हैं, AOB, एंगल AOB। ये हमारे क्या है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और जिस पॉइंट पे एंगल बना है वो हमारा हमेशा किस में रहेगा, मिड में रहेगा, या BOA, O बीच में ही रहेगा जिस पॉइंट पे हमारा एंगल बना है। वी नेम दिस एंगल एज एंगल O और एंगल AOB और एंगल BOA, कीपिंग the name of the vertex in the middle. We read it as angle O or angle AOB or angle BOA. When there are more than one angle formed by intersection of lines or line segments, then they are labeled as 1, 2, 3, 4 and called as angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 respectively. In the adjoining figure, angle AOB, ये हमारे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, AOB, O पे एंगल बना है, किस पे बना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, O पे। तो हमेशा एंगल 1 क्या है, AOB, एंगल 2 क्या है, BOC, एंगल 3 क्या है, COD, एंगल 4 क्या है, DOA। तो इस तरह से ये सारे हमारे एंगल्स के नाम हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल 4। नोट दैट सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर एन एंगल दिस, ये तो बताया अभी, ये हमारा एंगल को लिखने का क्या है, सिंबल। नाउ नेक्स्ट इज interior and exterior of an angle. First is interior of an angle. The region of the plane that lies within the angle is called the interior of angle. In other words, it is the region bounded by the arm of the angle. In the figure, the shaded portion is the interior of an angle AOB and point P, Q and R lie in it. ये हमारा क्या है, ये शेडेड रीजन जो हमारे रे की बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, इस रे की बाउंड्री के अंदर है, ये सारे हमारे क्या है, इंटीरियर, ये हमारा है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। द रीजन ऑफ द प्लेन that lies outside the angle is called the exterior of the angle. In the figure, the unshaded portion is the exterior of angle AOB and points T and U lie in it. इस शेडेड पोर्शन के बाहर जितना भी पार्ट है, जितना भी रीजन है, वो सारा क्या है, एक्सटीरियर, और हमारे T और U हमारे किस में है, एक्सटीरियर पार्ट में है। नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर रीजन। The interior of an angle together with the angle itself is called the angular region. Every point on the arm of the angle is said to lie on the angle. In the figure, points L and M lie on angle AOB. ये इंटीरियर पार्ट है, ये एक्सटीरियर, लेकिन जो आर्म के ऊपर है एंगल में, ठीक है, तो जैसे L और M ये हमारे क्या है, ऑन आर्म, आर्म के ऊपर जो लाई करते हैं, दीज आर द एंगुलर रीजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। Two angles are said to be adjacent angles if first is they have a common arm, या तो उनकी आर्म कॉमन है, सेकेंड इज
दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, या वो कॉमन वर्टेक्स पे बने हैं. नाउ थर्ड, द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स of the angles are on the opposite sides of the common arm. In the figure, two angles AOB and BOC having common arm. Angle AOB and BOC में OB क्या है? Common arm है. क्या है? OB हमारी common arm है. Common vertex is O. O हमारा क्या है? Common vertex है. Right? And also there other arm OA and OC lie on opposite sides of common arm OB. Hence, angle AOB and angle BOC are adjacent angles. Example देखते हैं इसका. In the figure, name the points which are. First is in the interior of angle PQR. First में हमें क्या बताना है? इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स जो एंगल की बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट्स हैं. तो ए, डी और एफ ये सारे हमारे क्या हैं? पॉइंट्स ए, डी एंड एफ आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर. सेकेंड बी पार्ट क्या है? इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर. इस बाउंड्री के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या है? एक्सटीरियर. कौन कौन से हमारे? बी और सी. तो इसका आंसर क्या रहेगा? पॉइंट्स B and C are in the exterior of angle PQR. Now third C part. On angle PQR, एंगल के ऊपर. तो कौन कौन से एंगल के ऊपर? हमारा P, G, E और R. ये सारे हमारे क्या हैं? एंगल के ऊपर. ठीक है. तो ये तो हमारे क्या है? इसके एंड पॉइंट्स है. तो हमारा G और E कौन सा लेंगे? पॉइंट्स G and E are on angle PQR. तो इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन खुद कीजिए.